Along with inviting our next speaker, I'm officially signing off from this event. The rest of the event will be hosted by Arsalan. It was really great knowing you all. Well, our next speaker is Syed Muaz Shah. He is currently serving as the director at the Center for Human Rights at Ziauddin University, Faculty of Law, Politics and Governance in Karachi. For the past 4 years, where he teaches human rights and Islamic law, two key focus areas. He has extensive experience working with NGOs and INGOs consulting, including international adoption agencies, UNWOMEN, US State Department, and many more. His passion is EDR, and specifically mediation, which has led him from a very young age to partake in interfaith activities to build harmony. From his early years, he was nominated on behalf of his school to attend the Prejudice Awareness Summit, a prestigious annual event hosted by Jewish Women International in 2000. Since then, he has worked for over 20 plus years in interfaith harmony, spending time with Buddhist monks, studying and understanding Judaism under Rabbi Levi Klein, and organizing interfaith visits between worship centers. Academically, he has studied major texts from over a dozen faiths, particularly Manusmriti, faiths, trying to discover the core truth that connect human together. Over to you, sir. Thank you so much, Paika, for that introduction. And thank you so much for participants to be here, my fellow panelists as well. I was listening to some of the great conversations from Anita and Ahmed before me about the unity of faith and this project that Safi Kaskas and Zain Malik, who has brought to Pakistan. I'm highly appreciative of this. क्योंकि मैं इतना कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये इंटरफेथ हार्मनी और इंटरफेथ डायलॉग तो वेरी लिमिटेड स्कोप में है एंड जैसे आपने भी इंट्रोडक्शन में बताया था आई spent a lot of time in America and from a very young age when I was in 5th grade I actually attended this Prejudice Awareness Summit by the Jewish Women International, which was one of the biggest Jewish organizations globally and quite known. And it gave me an opportunity कि एक तो interaction के हवाले से prejudice के हवाले से मैं खुद जो है पहले तो मैं ये admit करना है और हमें सब ये admit करना होता है कहीं ना कहीं अपनी life में आज में भी कि जो हमें बचपन में सिखाया जाता है अमूमन हम उसको at face value समझते हैं कि हकीकत है एंड इसी चीज को हमें रखते नजर रियलाइज करना है कि कितनी गलत सोच वो हो सकती है वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली जो लोग हमें कभी सिखाते हैं और बताते हैं गैर दलीली हिसाब से बताते हैं और उनका भी बेचारे वो भी विक्टिम्स हैं ऑफ ए ट्रेडिशन स्टार्टिंग वे बैक जिसके अंदर जो है इंटॉलरेंस लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इग्नोरेंस और जहालत की वजह से वो गलत चीजें फैला रहे हैं और फिर वो नई नस्ल में यही चीजें डालते हैं तो इस वजह से मैं भी I was also a victim of this type of ignorance from people in the communities that I engaged with and was a part of. And this is natural. Yes, आज भी I think everybody जो यहाँ पे youth मौजूद हैं वो भी बता सकते हैं कि हमें क्या बताया गया यहूदियों के बारे में क्या है क्या नहीं हमें ईसाइयों के बारे में बताया गया क्या है क्या नहीं हमें शिया सुन्नी के दरमियान में भी बताया गया इस हद तक भी ऐसी ऐसी बातें और बिलीव्स जो है जो come from a place unfortunately of ignorance क्योंकि खुद उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया खुद उन्होंने ट्रूथ के पीछे नहीं गए वो आदमियों से उन्होंने ट्रूथ हासिल करने की कोशिश की एंड उसमें क्या होता है कि what happens is that the truth is lost and men are remembered and so there's a saying of Ali that I would like to share in respect to this that was very central to me and my philosophy of learning as well. You will find this saying और ये कहना जो है इमाम गजाली की मशहूर किताब में अपनी autobiography in which he said, do not learn the truth from men, learn the truth and then you will know it's men. And iske abu of course this in this maxim you can of course grasp
the reality that truth is not to reside in any human being, right? Each one of us जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो इसमें मौजूद हैं, जो हमारे साथ घूमते हैं फिरते हैं पाकिस्तान में and outside, they have a part of the truth, because every one of us have to acknowledge कि हमारी subjective realities की limitations के तहत, हमारे experience के तहत, हमारा इल्म जो है बिल्कुल ही एक मुख्तसर है मुकाबले में जो अल्लाह और the divine इल्म है, और जो सारा इल्म exist करता है हमारे human society के अंदर तारीख से लेके आज तक. तो पहले तो आप ये रियलाइज करें कि आपको नहीं पता. That's the starting point. If you don't start from a very humble place that you do not know, तो फिर आप कहीं आगे नहीं जा सकते, आप कुछ और नई चीज नहीं सीख सकते. तो पहले मैंने आपको इस क्लेंजिंग प्रोसेस में थोड़ा सा मुझे डालना पड़ा अपने आप को, और मैं इंकरेज करूंगा जो हमारे साथ यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स है, पैनलिस्ट है, आई एम प्रीटी श्योर मोर सो उसको जानते हैं कि पहले ये सेल्फ क्लेंजिंग आप मेंटली अपने जहन में ये बात डालेंगे तो फिर आगे जाके कुछ बात आपको हासिल हो सकती है, कुछ इल्म आपको हासिल हो सकता है. तो this was a position that I found myself at a very young age. And इसमें मुझे जो opportunities मिली in America, वहाँ पे तो दावत के नाम पे, particularly with Islamic Circle of North America and Why Islam, there was a lot of interfaith dialogue in which we invited Christians to come to the masjid. We went to churches, we went to synagogues, the Jewish people visited masjids. We had interfaith dialogues dealing with different topics and issues in which the Abrahamic tradition के अंदर हमारी इतनी unity है कुछ issues पे. और मैं इस तरह से भी नहीं कहता कि ये कोई एक जैसे कहते हैं ना कि एक liberalized perception of unity है. No, we are unity based on certain principles and moral declarations. ठीक है, तो अगर आप समझते हैं कि morality और ethics कोई इतना मुख्तलिफ है in the Islamic Christian Judaic tradition, you have another thing coming, because our morality ethics is almost the same. And true, there are many sects among each one of us. Islam के अंदर भी बहुत सारे sects हैं, Christianity में भी, even यहूदियों के दरमियान भी. But the principal core text actually relate to principles that we all adhere to. Do not murder, do not steal, right? And I will even state the more controversial element of it about the condemnation of certain sexual behavior. Marriage outside of marriage, for example. That's something that is condemned in the traditional text of तीनों के Abrahamic traditions के अंदर. तो जहाँ पे हमें modern challenges, particularly with our youth and different elements, the uses of drugs, the usage of alcohol, these type of things, we can come united and truly make a proper stance against these challenges. And ये चीजें मैं again कहता हूँ कि ये चीज नहीं हुई है, आज तक नहीं. आज तक you don't see कि पोप और जो है आपके मक्का शरीफ के कोई खतीब और उसके साथ साथ जो है इजराइल में कुछ रैबाइज, अमेरिका में साथ मिलके इन कोर मॉरल एथिकल इश्यूज के ऊपर जो सब मुत्तफिक हैं, कभी सब एक साथ मेज में आके कोई एक चार्टर इस तरह से नहीं बनाया. हाँ, अलबत्ता उस पे पॉलिटिकल चार्टर्स तो बने हैं जरूर, वो अपने पॉलिटिकल वजूहात की वजह से, उस पे मैं बात नहीं कर रहा. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल moral ethical principles that the Abrahamic tradition agrees to, and there is no debate about that, because in the holy text you find these similarities. और ये चीजें मैं समझता हूँ बड़ा अहम है और important है, और इस for this message to really have more of an impact is we have to delve into those moral and ethics that unite particularly these three religions. The whole message of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shuru din se has been ahle kitab and fulfilling the message. So if I can in rough languages, if we say the Torah is the Old Testament, the Torah is Old Testament, the Injil, the Gospel, is the New Testament, right? Then the Quran is a sense the final testament. And you know, Amuman, Apo and यहाँ पे, I will be very thankful to Safi Kaskas for making an effort. Actually, जो हमारे traditional मुफस्सिरीन ने भी इसके ऊपर बड़ी मेहनत और कोशिश की है कि इज़राइलियात, which खुद Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in his hadith said that you can take learnings
from the tradition of the Jews and Christians that are, of course, in adherence to the Quran and Sunnah. ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और कमांड है, और ये चीज अगर हम समझे सही तरीके से, that means we have to acknowledge the truths in the holy books. So the reconciliation of the holy books is an extremely important message, जो मैं समझता हूँ especially पाकिस्तान में almost ना होने के बराबर. We talk about a little bit of interfaith dialogue, something, but no constructive, really research-based work. So my actually point of my short talk, aside from this introduction, was to focus on one example in the history of the Jewish tradition, जिसके अंदर एक बहुत एक अजीम शख्सियत जिसका नाम था Moses Maimonides. He was known as Musa bin Maimun in Arabic. And the uniqueness of this person, मैं emphasize नहीं कर सकता कि इनका impact और किस लिहाज पे particularly तौहीद और theology के ऊपर दोनों Christian और मुसलमान tradition और जो आज तक the beliefs उसके ऊपर कितना impact Moses Maimon. And I will share some few things from his life and from his readings that will give you an idea कि किस किस्म का इंसान ये था and how Jewish thought in particular when it comes to theology और जो तौहीद के हवाले से इतना मुख्तलिफ नहीं है इस्लाम से. अगर मैं start करूँ को Musa bin Maimun, he was born to a rabbinical family. And अमूमन क्या होता है कि यहूदियों के अंदर, as you know in the introduction it was also said, I spent 2 years with a rabbi. I used to sit with the rabbi to learn about the Torah, to learn about the Mishnah, the Talmud, right? And जब तक आप बैठ के सीखेंगे नहीं, आप नहीं समझेंगे, you will not have an idea of what is the actual proper beliefs. And that's the same thing that I encourage, that those who wish to understand each other, right? Quran ke command had for, we have created you into many nations and tribes so that you could get to know one another, right? ये तो एक कुरान की आयत है कि आपको मुख्तलिफ nations, right, कौमों में तकसीम किया गया. किस वजह से? ताकि आपस में आप एक दूसरे को पहचाने की सूरत हाल किस तरह से होती है कि one, of course, identification, oh they believe in this, they believe in that. Then you can only do that जब आप उनको understand करें, आपके कोई एक फहम हो, एक कोई understanding हो कि what is the actual belief, what is your actual belief, what is their actual belief. And when you again आप इस चीज पे थोड़ा सा टाइम और तवज्जो देंगे तो आप रियलाइज करेंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे. सबसे पहले मैं समझता हूँ अगर आप जड़ पे आए, जो हमारे मसले मसाइल आई फील जो इंटरफेथ स्ट्रगल्स भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, वो इस वजह से है क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं है. जैसे मैंने पहले कहा, we come from a place of ignorance, we come from a place of jahiliya, assuming with prejudice. आपके जहन में जो चीजें जो खन्नास डाला गया है कोई लोगों के खिलाफ, कोई एक बिलीफ के खिलाफ, बेदलील, विदाउट एनी दलील आपको बस बताया गया. मैं कितने मैं गिनती करूं कि इस हद तक भी सुन्नी शिया के दरमियान भी किस किस्म के जो है जाहिलाना चीजें जो है यूथ को बताई जाती है दोनों तरफ से, कि तफर्रुक और नफरत फैलती है. The same thing with the Jews, with the Christians amongst the Muslims, and I'm pretty sure the same thing happens amongst the Christians and Jews as well, right? वो भी कुछ इस तरह से नहीं है. And this is unfortunately a tradition that is based in jahiliya and ignorance in everybody's grouping. तो इस चीज को तोड़ने के लिए, इस इल्म को हासिल करने के लिए, you have to step out of those bounds. And Musa bin Maimun, Moses Maimonides, मैं उसको Maimonides ही रेफर करूंगा. He was educated in the Jewish tradition by Jewish scholars in Spain and Morocco. He himself belonged to a rabbinical family, जैसे मैंने आपको बताया, और इन्होंने बहुत ही एक जबरदस्त किताब शाये की थी जिसका नाम था मिशना. एंड मिशना समझ लें जैसे इब्न कसीर, सारे जो यहाँ मौजूद हैं जानते हैं, सुना तो होगा ये नाम. इब्न कसीर is known as the most preeminent, most popular known mufassir of the Quran. So Musa bin Maimun, Moses Maimonides, was the most famous mufassir for the Jewish people. He was the most famous of the mufassirin जो तोरा को समझने के लिए
उसको एक्सप्लेनेशन के तौर पे इन अ वेरी फेमस 14 वॉल्यूम। और ये मजेदार बात ये भी आपको बता दूं, मिशना जब इन्होंने इनिशियली शाये किया, इन्होंने अरबिक में लिखा। अब आप भी हैरान होंगे इस बात को कि एक मोसेस माइमोनिडीज ने अपनी ही तफसीर दौरा की, मिशना जिसका नाम था, उसको अरबिक में लिखा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दैट वी गो बैक इनटू 1100s, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। लैंग्वेज से कम्युनिकेशन होता है, जैसे मैंने अगेन एम्फसाइज गोइंग बैक टू व्हाट आई जस्ट सेड, व्हेन वी कम्युनिकेट विद ईच अदर देन वी बिगिन टू अंडरस्टैंड। मिशना की वजह से हमारे उलमा हजरात समझने लगे ज्यादा बेहतर अंदाज से कि इनकी तफसीर में क्या क्या चीजें हैं। और हमारे मुफस्सिरीन जो उस वक्त भी और उसके बाद भी मिशना से उन्होंने काफी चीजें हासिल की जो आज तक आपके जो है तफसीर में, मुफस्सिरीन की तफसीरों में आपको मिलेगा। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, अबुल औला मौदूदी जो हमारे पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्ली हैज द मोस्ट फेमस तफसीर, उर्दू का जो तर्जुमा है, इसके अंदर आपको साइटेशन मिलेगी मिशना के बाद। हैरान हो गए आप, बिकॉज अगेन मैंने क्या किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इजराइलियात के आपको जहां तौरात, जहां इंजील, जहां जूइश और क्रिश्चियन ट्रेडिशंस में बातें समझ में आएंगी जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, उसको आप माने, उसको आप माने। तो the whole exercise that Professor Safi Kaskas is doing something very revolutionary. He's going back into the Quran, he's going back into the Bible, he's trying to align those similar thoughts. And this was something that Musha bin Maimun, Muhammad Maimonides himself was doing. Why? Because he was influenced by Islamic scholars. Musa bin Maimun, Moses Maimonides, was born in Spain. And also, if you can look at the Jewish history, they call the golden years, अल्फाज लेते हैं golden years, मतलब उनके सबसे शानदार जो सालों गुजरे इनकी तारीख में, वो कहाँ गुजरी हैं? वो इस्लामी रियासत जो स्पेन में मौजूद। अच्छा, वो अकेले नहीं थे, the Christians as well, who are not, of course, of the of a different sect, who are, you know, suppressed otherwise by the Visigoths, जो मुसलमानों की रियासत से पहले थे वहां पे, जिसमें तारिक बिन ज़हीद का जियाद का फतह हुआ। और यकीनन दी स्पेनिश हिस्ट्री, दी हिस्ट्री तारिक बिन जियाद से जो 700 साल बाद हुआ, जितना मल्टी कल्चरल प्लूरलिस्टिक सोसाइटी आपको मिलेगी, आपको यकीन करें आज के मॉडर्न कैपिटल्स के अंदर भी नहीं मिलेगी जिस हद तक स्पेन में मुसलमानों की रियासत। And that is why Spain was highly successful in intellectual pursuits, highly successful in the sciences. Ibn Rushd, right? Ibn Rushd is from where? He's from there. Moshe bin Mamu, where he's from? He's from there. Ibn Hazm, बहुत मशहूर उलमा जो है, जो समझ लें हमारे चार जो फेमस इमाम्स हैं, उनके हिसाब से ही एक बाद में एक इमाम साहब थे, इस हद तक उनके था, उनकी एक लेवल थी। We hear, of course, of the tradition of Ibn al-Arabi, right? These are all coming. There's a root with Andalusia. और अंदलूसिया में आपको ये चीजें मिलेंगी। तारिक बिन जियाद, और ये ऐसी कोई चीज नहीं कि ये बाद में आई। तारिक बिन जियाद, when he landed, and you can read about this, the Jews and Christian groups joined Tariq bin Ziyad to fight against the oppression of the Visigoths. To fight against the oppression. अंदाजा लगाएं कि वहां पे हम ये तो कोई पुरानी बात भी, अगर मैं उससे भी अगर पहले जाऊं तो एक रैबाई थे बहुत मशहूर, रबी मुहैरिक, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जन्नत इसने हासिल कर लिया। क्यों? क्योंकि he kept to the covenant of the constitution of Medina, जिसके अंदर मदीना की रियासत के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जहां पे जो है वहां पे यहूदी ट्राइब्स भी उसके मौजूद थे। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो सबसे बड़ी बात यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी मदीना जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से में था, जिसके अंदर यहूदी भी थे, जो चंद क्रिश्चियंस थे, जो चंद दूसरे रिलीजन्स थे, वो उनको करार क्या दिया? उम्मा। उम्मा। जो आज हमारे सब पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए, उनके जहन में ये होगा कि उम्मत के माने ये है कि मुसलमान उम्मत, क्योंकि इस तरह से इस्तेमाल हुआ है। लेकिन वो जो रियासत मदीना हम सुनते रहते हैं, पॉलिटिक्स में माशाल्लाह बहुत चल रहा है पाकिस्तान में, आप जाके उसको पढ़ें, उसको उठाएं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना के अंदर क्या लिखा हुआ था।
उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि सब हम ये उम्मत का हिस्सा है। अब इसको हम बाद में डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इसको कोई डिसएक्नॉलेज नहीं कर सकता कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में देना। सो इस लेवल की थिंकिंग प्रोसेस में तारिक बिन जियाद अगर आगे जा रहा था, और उनके काफिले के साथ लोग यहूदी, ईसाई और दीगर अफराद ने भी साथ दिया, और वहां पे एक रियासत कायम की जो 700 साल चली। इसके अंदर मूसा बिन मामून पैदा हुए, इसके अंदर मूसा बिन मामून ने अपने हासिल सीखा, जिसके अंदर इस्लामिक स्कॉलर्स का अगर मैं चंद एग्जाम्पल दूं, इब्न रुश्द, इब्न सीना, अल फराबी को ये कहते थे कि मेरा दूसरा उस्ताद, मतलब सेकंड मास्टर। पहले मास्टर तो एरिस्टोटल, राइट, फ्रॉम द ग्रीक ट्रेडिशन ऑफ फिलोसफी, बिकॉज मूसा बिन मामून वाज अ फिलोसफर। लेकिन अल फराबी, आप सोच सकते हैं कि एक फेमस यहूदी रैबाई कह रहा है कि मेरा जो सबसे दूसरा बड़ा मास्टर है वो एक इस्लामी आलिम, बिकॉज मूसा बिन मामून, मोसेस माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट and honor for the truth was like nothing else. जहां से भी उसको मिला उसने उठाया। इनफैक्ट उसने खुद, उसके एक कोट है उसकी कि accept the truth whatever its source, आप हक को एक्सेप्ट करो जहां पे भी आपको मिले। और यकीन करें ये अल्फाज वही नहीं है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोहराए हमें, कि जहां पे आपको हिकमत मिली वो जैसे एक माल है जो जो एक मोमिन से गायब हो चुका, जहां मिला उसको उठाओ। तिरमिज़ी में हदीस है। दिस इज द सेम थिंग, सेम प्रिंसिपल, एक्सेप्ट द ट्रूथ व्हाटएवर इट्स सोर्स। जैसे मैंने पहले भी आपको अली रज़ियल्लाहु अन्हु का भी कहना से एक तरीके से मैं encourage कर रहा था कि seek the truth and then you will know it's men, instead of seeking the truth just from men. He did not. This is the same practice that we find in his students from other traditions. For example, one of his most famous students, in one sense, was Saint Thomas Aquinas, probably the most famous Christian philosopher in the history of Christianity. He was a student of Musha bin Mamun. और मूशा बिन मामून एक ट्रेडिशन से आ रहा है जहां से इस्लामी स्कॉलर्स उनके जो है उस्ताद थे। मतलब आप तसव्वुर करें इधर, ये जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो इस लेवल की बातें जो आज अगर ईसाई सेंट थॉमस एक्विनस को याद करते हैं फख्र से, वो सोचे उनके उस्ताद कौन थे। और आज मूसा बिन मामून को यहूदी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक ही मूसा आया है, और समझ लें हमारे पूरी तारीख में दो मूसे हैं खास। आप सोच सकते हैं हमारी तारीख में, यहूदियों को कहना है हमारी तारीख में दो खास मूसा हैं, मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा बिन मामून। इस हद तक इनकी एक वैल्यू है। और ये कहाँ इन्होंने सीखा? इन्होंने सीखा इस्लामी स्कॉलर से, यहूदी स्कॉलर से भी सीखा। But he was always open to the truth. Accept the truth wherever you are. और यहाँ पे बात भी नहीं आई कि इन्होंने कोई खास कहा कि superiority of कोई prophecy। अच्छा, लोग समझते हैं कि यहाँ इस तरह से भी कोई ख्याल आता है कि ये एक नबी दूसरे नबी से आगे है, राइट, कि ईसा अलैहिस्सलाम is somehow greater than Prophet Muhammad. Prophet Muhammad is greater than Musa अलैहिस्सलाम. This is something that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam himself discouraged, और मुख्तलिफ आपको रिवायतें भी मिलेगी। मूसा बिन मामून भी कहते थे कि आप ऐसे मत कहें। नबूवत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर नेशन, हर कौम को दी, और उसमें डिग्रीज डिफरेंसेस हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते वो नबी नहीं थे अल्लाह के। ये बहुत एक रेवोल्यूशनरी बात, क्योंकि इनके अपने जो यहूदियों के खास इनसे पहले थे, he was another famous scholar, जूदा हल्बती, he denied, उन्होंने कहा नबूवत जो है किसी और कौम में नहीं आ सकता। लेकिन मूसा बिन मामून ने कहा ये गलत, ये सही नहीं है। यहाँ पे ईसाई मतलब के अंदर भी दरमियान बेशक हमारे मसीह के ऊपर डिसएग्रीमेंट है, लेकिन नबूवत के ऊपर नहीं है, और इस्लाम के अंदर भी। और एक हदीस है जहाँ कहता है ला तुखैरू बैनल अंबिया, डू नॉट मेक द प्रॉफिट्स बेटर देन वन अनदर। सही मुस्लिम है हदीस। ये आप नबियों के दरमियान नहीं कहते। मेरा सवाल है हमारे मुसलमान बहन और भाइयों से, आपका इतना जज्बा जब जागता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो मैं समझता हूँ जायज है जज्बा, ये उसका किस तरीके से आप इजहार करें वो एक अलग डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन सवाल मेरा है कि आपके अंदर वो जज्बात क्यों नहीं है मूसा अलैहिस्सलाम के लिए? आपके अंदर वो जज्बात क्यों नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम के लिए? एंड दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम।
ये अंदर अगर आप थोड़ा सा 2 मिनट अगर सोचें और इसकी थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाएं कि ये भी तो नबी थे, these were also the prophets of God and they deserve the same level of respect and dignity, और हमारा जज्बा उतना ही जागना चाहिए। जब रसूल सल्लम इतनी वो कहते थे कि मेरे दरमियान और मेरे भाइयों के दरमियान आप ये तफर्रुक मत फैलाए, कोई रसूल सल्लम कोई नई चीज के लिए नहीं लेके आए थे, वो एक फाइनल टेस्टामेंट के लिए लेके जाए थे, that I said in the beginning, to fulfill the message of the prophets of his brothers who came before, right? So this is very important for us to understand. One final thing that I will kind of focus on that मैं समझता हूँ मूसा बिन माइमून नोविस माइनॉरिटीज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, वो था तौहीद के ऊपर, क्योंकि उनके दरमियान एक यहूदियों की भी एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप थी नोन एज मुतकल्लिमून, और मुतकल्लिमून वही लोग थे जो मुसलमानों के अंदर भी ये चैलेंजेस आए थे। मुतज़िलाइट्स, आप लोग जो जानते हैं इस्लामी तारीख के हिसाब से, जहाँ पे मुतज़िलाइट्स भी जो है अबासिद के दरमियान जो है एक अपना थियोलॉजी प्रमोट कर रहे थे कि नाउज़ुबिल्लाह के कुरान पाक जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला इज अ क्रिएटेड फॉर्म, जिसमें इमाम अहमद इब्न हंबल ने बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और स्ट्रगल किया कि आप जो है लॉजिकली कैन नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड गॉड, बिकॉज खुदा ऐसी एक चीज है, गॉड इज समथिंग दैट इज अनफैथमेबल, ठीक है। दिस इज समथिंग मोसेस माइमोनिटीज आल्सो फोकस्ड ऑन, and he argued against these theological debates in his works. He wrote what I consider one of my favorite philosophical masterpieces, and I encourage those who philosophy में बड़ा आपकी दिलचस्पी है फलसफे में, The Guide for the Perplexed आप जरूर पढ़ें। और ये भी जैसे मिशना की तरह जुडेओ अरबिक में लिखा था, तो उसके अंदर ऑब्वियसली मुस्लिम थिंकर्स को भी इसका इल्म वहीं से मिला, वहीं एक्सेस उनको मिला इसके ख्यालात। वहां पे क्या चीज है, मूसा बिन माइमून लिखते हैं, वो कहते हैं कि जबाने जबाने जो एस्पायर करती हैं, वो कोशिश में लगी हैं कि अल्लाह को मैग्नीफाई करें, तुकब्बिरुल्लाह, अल्लाह को मैग्नीफाई करें बाय मींस ऑफ एट्रीब्यूट्स और क्वालिफिकेशंस। आपकी सारी जबानियत, सारी एलोक्वेंस टर्न्स इनटू वेरीनेस एंड इनकैपेसिटी। आप अपने जबान के अल्फाजों को भी अल्लाह को जो है महदूद नहीं कर सकते, अल्लाह इससे भी बड़ा। यकीन करें कुरान की आयत में लिखा हुआ ला तुदरिकुल अबसारु वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवा लतीफुल खबीर। कुरान की आयत सूरत अनाम वर्स 103, नो विजन कैन ग्रास्प हिम। कोई भी इंसानों का, कोई भी टेक्नोलॉजी का, कोई भी किस लिहाज से आप यू ट्राई टू परसीव गॉड, अल्लाह इज अबव दैट, बट गॉड इज ऑल सीइंग। आप तसव्वुर नहीं, आप अल्फाजों में जो है खुदा को जो है समझा नहीं सकते जिस लिहाज से खुदा असलियत में नहीं कर सकते, ना मैं ना आप, ना हमारा विजन हो सकता है। एक और हदीस है बहुत मशहूर के खुदा इज समथिंग अदर देन दैट व्हिच यू परसीव, समथिंग अदर देन दैट व्हिच यू परसीव, मतलब आपके जहन में whatever you think that God is, because sometimes unfortunately due to modern media and many things people के अंदर जहन में एक इमेज आता है कि खुदा इस किस्म का होगा, और God must look like this. God is other than that. मूसा बिन माइमून was also very strenuous on this कि आपके ख्याल जो खुदा के बारे में, that's something. He took great pains to explain that these biblical divine traits are not to be seen as telling us God in actual reality, but rather उन्होंने कहा कि numerous attributes जो हैं हमें diverse notions that figure into the scripture that are indicative of him, वो उनका एक झलक हमें मिलती है। खुदा को हमें, जैसे आप चलते हैं आपके साथ वाकयात होते हैं, आपको एक झलक खुदा की नजर आती है, किसी के चेहरे में, किसी के एक छोटे हरकत में, राइट, आपको झलक नजर आती है, पर आप उसको खुदा, you cannot try to define God in those human experiences. So this was something very, ये तौहीद के हवाले से इतना बड़ा था। और जहाँ पे खुदा की, और मैं इस फाइनल पॉइंट पे थोड़ा सा मेरा लंबा हो गया, मैं इतना शेयर करूंगा एक मुख्तसर उनके ऊपर मर्सी के बारे में, कि उन्होंने खुद कहा कि अगर हम खुदा की एक डिस्क्रिप्शन लें, एक डिस्क्रिप्शन लें कि खुदा जो है अर रहमान अर रहीम है, खुदा, गॉड इज मर्सिफुल। कुरान के अंदर हम कहते हैं, हर मुसलमान कहता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर रहमान के माने ये हैं कि कुदरती तौर पे इनहेरेंट जो है मर्सी मैनिफेस्ट क्रिएशन में,
Ar-Rahim is more like acts of mercy, right? He's the Lord of having merciful as an action. But Rahman is something inherent. मतलब कुदरती तौर पे हर चीज में, हर क्रिएशन में आपको मिलेगा इस किस्म का जो अल्लाह ने क्रिएट किया inherently, and within that's what a God is. And हदीस में हमें डिस्क्राइब किया है क्या कि खुदा की अगर हम मर्सी एक साइड पे रखें और पूरी दुनिया की मर्सी एक साइड में रखें, तो अल्लाह के पास 99 पार्ट्स हैं, और पूरी दुनिया में जो सारे तारीख में ला के पूरे आलामात में लगा के वो एक. दिस इज अर रहमान. और एक ब्यूटीफुल अंदाज से मूसा बिन मामून समझाते हैं इसको. वो कहते हैं खुदा की इनहेरेंट मर्सी आपको पता है किस तरह से हम पहचान सकते हैं. मैं अभी सवाल सबसे पूछता हूँ, आप खुद सोचें. इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत है आपको? सबसे पहले मकाम सांस. और उसकी अवेलेबिलिटी आप देखें इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है. आप सुनोगे सांस फ्री, 5 मिनट ये सांस नहीं है आपकी मौत आ जाएगी. 5 मिनट ये सांस नहीं है आपकी मौत है. खुदा ने इतना बेतहाशा फैला हुआ ये सांस के हम मुफ्त का उसका हासिल कर सकते. वी डोंट हैव टू पे एनी टैक्स, वी डोंट हैव टू पे एनीबॉडी, right? Unfortunately, during the COVID crisis, they did have the oxygen, right? But other than that, this is free. The air is free to breathe. And we need the air because and the main thing, without air, 5 minutes we're dead. Then Musha bin Mamun says, uske baad insan ki kya zarurat hai zinda rehne ke liye? Pani. And look around the world, water is the next most available element aapko milega is dunya mein, right? Not only is in one sense 3/4 of the globe is covered with water, right? When we talk about water as an element, you find it everywhere. So much so it's practically free. Though aajkal jo hai hame pata corporations have been trying to bottle it and sell it to us, right? वो तो एक अलग बात. But Musha bin Mamun कहते ये देखें, और बेतहाशा आपको लेकिन आपको हवा से कम मिलेगा, because हवा सबसे पहली जरूरत है इंसान की जिंदा होने के लिए. उसके बाद पानी है, because पानी के बगैर एक इंसान एक हफ्ते तक ज्यादा मैक्सिमम 3-4 दिन तक जिंदा रह सकता. उसके बाद उन्होंने कहा आप अल्लाह की रहमत देखें कि इंसान की तीसरी जरूरियात के ऊपर क्या चीज अहम है. वो कहते हैं कि आपके बेसिक फूड जैसे बार्ली, ग्रेन, चावल, राइट? और कोई भी सोसाइटी आप ले लें, कोई भी गरीब लोगों के पास जाते हैं, उनके पास बैठ के देखें उनकी मेज पे खाना क्या है, तो वो वाली चीज कितनी बेतहाशा हमारे मुल्कों में आपको मिलती. वीट, बार्ली, राइस, राइट? चीप, पूरा बोरियों के साथ चंद रुपए में, राइट? आजकल तो we know there's been some changes on that, but you know, we have to realize कि मूसा बिन मानून हमें इसी एग्जाम्पल में बताते, ये देखे खुदा की रहमत, खुदा का अर्रहमान, के आपकी सांस, आपका पानी, आपका बेसिक फूड इतना अवेलेबल है जिस हिसाब से आपकी उसकी नीड है. इतना अवेलेबल नहीं है जैसे पानी है बेसिक खाने की, लेकिन उससे नेक्स्ट स्टेप पे वो है. और उसमें आप दीगर चीजें आप निकालते रहे तो आपको एहसास आएगा कि सुभान अल्लाह, अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान अर्रहीम. He had 13 principles, of which majority have to do with Tawheed, the existence of God, God's unity, spirituality, eternity, God alone, God's awareness of human action, the reward of the righteous and the punishment of evil, right? Innamal a'malu binniyat, and the resurrection of the dead. So I will leave you with this final note on Moses Maimonides. कि मूसा बिन मानून कहते थे खुदा ही जानता है, who utterly transcends the universe. इस आलमात से ऊपर जो है, जो खुदा ने खुद बनाया, कि उसका पर्पस है, एक मकसद है, और वो पर्पस ही ये है कि आप खुदा को पहचानें. यह है हमारी कुरान की आयत में नहीं है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, and did we not create the jinn and mankind except to worship. So I will leave this on this final note, and I encourage our participants, particularly the youth, that branch out, learn, communicate, establish relationships. You are born in a time in which there's technology. Reach out to people, connect with people, understand them. You're living in a where you just do one click and you have all the holy text before you, have all the commentary before you, have it all translated into English. So for you to claim that knowledge and access to knowledge was not given to you, आप ये नहीं claim कर सकते.
आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि मैं जाहिलियत में और जाहिल ही रहा हूँ, और आखिरत में जब अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाएंगे और आपके सामने सारे अमाल दोहराए जाएंगे, वो कहेंगे देखे जहालत में आपने क्या क्या किया, और आप कहेंगे नहीं इल्म नहीं था। उन्होंने कहा नहीं इल्म था, लेकिन आपने हासिल नहीं किया, आपने मेहनत नहीं की, आपने कोशिश नहीं की। सो ब्रिज, कम्युनिकेट, learn. And I think with that and hopefully efforts like this, we can begin to have these meaningful conversations that connect us together more than divide us. Thank you very much.